एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, जिंदगी के लिए, आशिकी के लिए। Hi, good morning. Today is 12th of February and we have come to visit the Murud Janjira Fort. So Murud Janjira Fort is there in the sea and it is called an invincible fort. So we all have come here to visit this. So be with me, I'll show you. আমরা এসেছি মুরুড জঞ্জিরা ফোর্ট দেখতে, মহারাষ্ট্রে মুরুড জঞ্জিরা ফোর্ট। তো এই ফোর্টটা বা কেল্লাটা, দুর্গটা সমুদ্রের মাঝখানে এবং সমুদ্রের আরব সাগরের মাঝখানে বলা যেতে পারে, এবং বলা হয় যে এই কেল্লাটা অজেয়, মানে একে কখনো জয় করা যায়নি, ইনভিনসিবল। তো আমরা এই কেল্লাটা দেখতে এসেছি, আপনারা সঙ্গে থাকুন, দেখাবো, আই উইল শো ইউ। প্রথম you can see the glimpse, the first glimpse of the fort. So it is there on the sea. You can just see it. You can see it is on the sea. So we have to go by these boats. So definitely these boats are available here. So a lot of boats you can see. Yeah. So one of the boat is going to take us there. So be with us. I'll show you Murud Janjira Fort. We have boarded the motorboat. So there are two options. One option is small boat, okay, and the other option is a big motorboat. So we are here in a motorboat. This is a motorboat and we are going by this motorboat, okay. So be with me, সঙ্গে থাকুন, আমি দেখাবো আমরা মোটরবোটে করে যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমি দেখাতে থাকবো যে মুরুড জঞ্জিরা ফোর্ট কেমন লাগে, থাকুন। You can see the other option of these type of boats, they are manually been sailed, and you can see there the Murud Janjira Fort. আপনারা মুরুড জঞ্জিরা ফোর্ট দেখতে পাচ্ছেন। এই এরকম ধরনের পালতোলা নৌকো পাওয়া যায়, আমরা যাচ্ছি স্টিমারে। তো এই স্টিমার আর ফোর্ট ভাড়া একজন অ্যাডাল্টের জন্য it is 130 rupees. The steamer fare per adult is 105 and entry fee in the fort is 25. So 130 rupees, 130 টাকা খরচ পড়ে বোট, স্টিমার এবং মুরুড জঞ্জিরা ফোর্টে ঢুকতে গেলে পরে। সঙ্গে থাকুন, দেখাবো মুরুড জঞ্জিরা ফোর্ট। আমরা মুরুড জঞ্জিরা ফোর্ট প্রায় পৌঁছে এসেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর এন্ট্রি পয়েন্ট এগুলো, এটা এন্ট্রি পয়েন্ট, ওখানে গিয়ে দাঁড়াবে এন্ট্রি পয়েন্টে। ইটস গোয়িং টু স্টপ देयर। बी विद अस, সঙ্গে থাকুন। 8,000 रुपये सैलरी देता है, लेकिन यही गाइड का पैसा नाव के अंदर जो हम 12 लोग जो काम करते हैं, ये हम लोग शाम में बांट के लेते हैं। लेकिन अभी किसी ग्रुप, किसी फैमिली को एक बंदे का 50 रुपया नहीं देना है, क्योंकि मैं और मेरा कोई गाइड आपके साथ में अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे मालूमात दूंगा, पॉइंट बताऊंगा, उस हिसाब से आप लोग अंदर जाके देखेंगे। लेकिन अपने अपने ग्रुप से, फैमिली से, अपने अपने खुशी से देना है, ताकि हम लोग जो ये काम जो करते हैं ये गाइड की आशा पे करते हैं। जैसा एक बंदे का 50 रुपया नहीं देना है, जैसा बड़ा ग्रुप है उन लोगों ने 200-300 दे दिया, छोटा ग्रुप है उन लोगों ने 100-150 दे दिया। तो हम लोग जो काम करते हैं मेरे भाई, ये गाइड की आशा पे करते हैं। किले के अंदर जब आप लोग अंदर उतरेंगे तो अंदर एक दरगाह है, समाधि है। जैसा अपने बॉम्बे के अंदर हजी अली है, हाजी मलंग है, पुणे के अंदर खेड़शुआपुर में कमल अली दरवेश है, उसी तरह से जंजीरे किले के अंदर 5 पीर की दरगाह है। और ये किला बनाने वाले का नाम है सिद्दीक जौहर। और ये किला बांधने से पहले ना यहाँ पे समंदर के बीच में एक बहुत बड़ा एक आइलैंड का खड़क था, और खड़क के ऊपर वो मज़ार थी। तो ये सीधे लोग अपने भारत में यहाँ पे जब भी आने के, तो वो दरगाह के ऊपर फूलों की माला, चद्दर चढ़ा के आगे चले जाने के।
एक दफ़ा ऐसा हो गया कि जब यहाँ पे आए और आने के बाद देखा कि जो ये समंदर का पानी दरगाह को टच हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए इतना बड़ा ये किला बांधा। और ये किले का काम 1118 में काम चालू किया और 1140 में ये किला बन के पूरा तैयार हो गया। किला बांधने के लिए 22 साल लगा और 22 साल में किले को 22 बुरुज बांधे। लेकिन आज आप लोग क्या बोल के कौन से किले के पास में खड़े अपन जंजीरा ना, ये किले का रियल नाम क्या है? जल जजीरा। जल मुझे मराठी में था पानी, और जजीरा समंदर के बीच में एक आइलैंड जो होता है, इसको अरबी के अंदर अल जजीरा कहा जाता है। तो लोगों ने इसे शॉर्ट फॉर्म करके जंजीरा बना दिया। किले के अंदर अपने हिंदुस्तान की, भारत की 3 नंबर तोप रखी हुई है, जिस तोप का नाम दिया गया कलाल बांगड़ी। और वो कलाल बांगड़ी एक तोप का वजन कितना है मेरे भाई? तो 22 टन 22,000 किलो का तोप है। देखो सामने फर्स्ट वाला। उसी के बीच में आप लोगों को एक छोटा तोप नजर आएगा। उस तोप का नाम है गाय मुख और तीसरे नंबर का नाम है चौड़ी तोप। खासियत क्या है मेरे भाई कि सुबह से शाम तक धूप में रहता है और शाम में भी आके जब आप लोग उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको ठंडा ही मिलेगा, गर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि पंचधातुओं का तोप है। अगर लोहे में बनाते तो आज 1000 साल पुराना तोप आज हमें समंदर के बीच में नजर नहीं आता। समंदर की खाड़ी हवा की वजह से जंग लग के पूरा खराब हो जाता है, इसीलिए उन लोगों ने पंचधातुओं में बांधा हुआ है। किले के अंदर 550 घर थे, 2 से 2,500 का आबादी था। 2 समाज के लोग थे, महाराष्ट्र और मुस्लिम। ये किले के अंदर मस्जिद और मंदिर दोनों थे। और अंदर साइड में मेरे भाई आज भी आप लोगों को 2 मीठे पानी के तालाब नजर आएंगे। पहला तालाब जो है वो किले के मेन गेट के पास में, क्योंकि उस तालाब के नज़दीक में उन लोगों ने मंदिर और मस्जिद दोनों बांधे। तो वो मंदिर और मस्जिद में यूज़ के लिए जाने के लिए पानी था, और दूसरा तालाब जो था वो पानी पीने के लिए। लेकिन दूसरे तालाब के हाफ सर्कल में रानी को रहने के लिए एक महल बनाए थे। और वो महल कैसा था मेरे भाई की खिड़कियों के अंदर ना 7 कलर की कांच लगाई थी कि सूरज की रोशनी जब कांच के ऊपर पड़ने की, उसका रिफ्लेक्शन पानी पे होने का, पानी 7 कलर के अंदर दिखाई देने का, रेनबो टाइप में। इसीलिए वो तालाब का नाम दिया था शाही तालाब। लेकिन जब ये जंजीरा किला जब बांधा गया तो यही जंजीरे किले के अंदर से एक रास्ता समंदर के 60 फीट नीचे से निकाला गया, अंडरग्राउंड टनल, भुयारी मार्ग। जैसा अपने पुणे के अंदर शनिवार वाले से परवदी के लिए निकाला, उसी तरह से जंजीरे किले से देखो गाँव की तरफ में जो नारियल के झाड़ के नीचे अपने को पत्थर की टूटी हुई दीवारें जो नजर आती है ना, भिंतें जो नजर आती है ना, तो किले के अंदर से रास्ता वहाँ पे निकाला गया। लेकिन अभी गांव से और किले से दोनों जगह से रास्ते को बंद किया हुआ है। ये रास्ता क्यों निकाला था उन लोगों ने कि अगर किले के चारों तरफ से अगर आक्रमण हो गया, हमला हो गया, तो यहाँ के राजा और यहाँ के प्रजा लोग किला छोड़ के कैसे निकलेंगे। इसीलिए उन लोगों ने इस रास्ते को बनाया था। लेकिन किले के अंदर आपको कहाँ पे देखने मिलेगा? जो सेकेंड वाला ब्रुज जो नजर आता है ना अपने को, सेकेंड वाला और लास्ट वाला, थर्ड वाला, वो दोनों के बीच में आपको एक छोटा विंडो नजर आएगा। और उस विंडो के अंदर उतरने के लिए आपको सीढ़ियाँ नजर आएगी। तो वहाँ से उन लोगों ने इस रास्ते को निकाला था। और ये जंजीरे किले को समंदर के बीच में 950 साल, 1000 साल हो गए समंदर के बीच में। ये जो समंदर के लाटें होती है, ये किले के ऊपर टकरा के देखो किले का पत्थर पूरा डैमेज हो रहा है। लेकिन जो उसके अंदर मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल है मेरे भाई? वो है गुड़, चूना, शीशा, नमक और समंदर का रतवा, ये डाल के किले को तैयार किया। अब आते समय आप लोगों ने इसके अपोजिट में एक और किला देखा होगा ना, वो किले का नाम है पद्म दुर्ग। छत्रपति संभाजी महाराज ने बांधे थे ये जंजीरे किले को जीतने के लिए। लेकिन जब वो किला पूरा तैयार होने के लिए आया तो रायगढ़ के किले के ऊपर औरंगजेब ने हमला किया। इसके लिए उनको आदिलाबाद छोड़ के जाना पड़ा रायगढ़ का किला बचाने के लिए। जब इन लोगों ने देखा कि वहाँ पे किले का काम बंद है, तो यहाँ से सैनिक ले जाके वो किले के ऊपर अपना कब्जा जमा लिए और उसका नाम रखे कासा किला। तो लोग अब इसे कासे किले के नाम से जानते हैं। तो ये किले के अंदर जब लोग रहने के, तो इन लोग को जब अगर खेती बाड़ी के लिए बाहर जाना है तो जाते समय गेट के पास उन लोग को एक कॉइन दे देने के। और उस कॉइन के ऊपर निशानी क्या थी? जैसा अपने पैसे के ऊपर त्रिमूर्ति गांधी जी पार्लियामेंट है, उन लोग के पैसे के ऊपर 6 हाथी और एक शेर की निशानी थी। जो उन लोग का वो एक गेट पास था। तो रिटर्न में जब आते हैं तो वो आपस में ले लेने के। अगर समझ लो किसी के पास नहीं है तो ऊपर साइड में आपको दोनों जगह पे छोटी छोटी विंडो नजर आएगी। वहाँ से उसे लोखंडी भाला फेंक के अपने दुश्मन को ख़त्म करके लोग समंदर के अंदर फेंक देने के। अभी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग टिकट लेके आ चुके हैं। तो ये अपनी जंजीरे किले का मालूमात था मेरे पास। किले के अंदर उतरने के बाद अपने को 45 मिनट में किला घूम के आने के बाद दोबारा अपने को अमानत बोट बोल के बैठना है। यानी अपना 45 मिनट जब हो जाएगा, अपना बोट गेट के पास में लगेगा, हम लोग आवाज़ देंगे अमानत बोट वाले तो ही आके बैठना है, वरना दूसरा बोट लगेगा उसके अंदर बैठना नहीं है। अब आप लोग खुश हो गए हमारी मेहनत से, गाइड से मेरे भाई अपने अपने ग्रुप से दे दो ताकि हम लोग जो 12 लोग जो मेहनत करते हैं मेरे भाई ये गाइड की आशा पे करते हैं। और ये सुबह से पहला भवानी पहला बिस्मिल्लाह आप लोगों को क्या आता है तो प्लीज़ खुश होकर देना है, नाराज़ होकर। ठीक है, बट असीम वो बाकी बात तो बतानी, पूरा कहानी बताओ ना। जी वो इसमें जो लोगों को जिनको मार के डाला था उनका भूत वगैरह भी आता है अंदर, वो हॉन्टेड है, वो सब बताया नहीं आपको? डराओ मत। नहीं बाबा।
is the entry of the fort. We are still on the boat, and now we'll go there. আমরা এই প্রধান ফটক, এই ফটকের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ঢুকবো, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। You have arrived, and we are standing now in front of the main gate. We have just arrived. Came by this staircase. And now inside you can see the sculptures. And these stones, they have eroded. They have eroded because during monsoon, and the waves they come, it gets flooded, the waves they come, and because of that, it gets inundated. And that's how you get the erosion. This is the bazaar. এটা সেই মাজার, যে মাজারের কথাটা বলা হলো, জোহর সিদ্ধি বানিয়েছিল, এরকম একটা মাজার এখানে রয়েছে। সো ইটস আ মাজার অফ জোহর সিদ্ধি। প্রায় 950 বছর পুরনো, around 950 years old. Yeah. So and this fort was invincible. Invincible মানে অজেয়, এটাকে জয় করা যায়নি। এখন এটা ভাঙাচোরা অবস্থা। শুনেছি এর ভেতরে একটা মন্দিরও আছে। There is a temple also inside. You will see that. I think this is the temple. This is the pond. This is a sweet water pond. Yeah. এটা মিষ্টি জলের, এই সমুদ্রের মাঝখানে একটা মিষ্টি জলের পুকুর। এটা সত্যি অভাবনীয়। It is really amazing to see a pond, sweet water pond inside the island, which is absolutely guarded by sea. So that is what amazing to see. Yeah. So you can see the ruins. The soldiers used to stay here. সৈন্য সামন্তরা সবাই এখানে থাকতো, রাজারা এখানে থাকতো। So yeah. So you can see this cannon. This cannon is the third largest cannon. Third largest cannon in India. So think of how big it is. My God. কত বড় কামান। এই কামানটাকে বলা হয় ভারতবর্ষের তৃতীয় বৃহত্তম কামান। অর্থাৎ এই কামান দিয়ে যদি জলপথে কোনো শত্রু আক্রমণ করে, if any enemy tried to attack this fort, this cannon was fired. এই কামান দাগা হতো। কি অসম্ভব শক্তি! How strong it could be, the energy and the force of this cannon. So this is the big cannon, the third largest cannon of India. ভারতবর্ষের তৃতীয় বৃহত্তম কামান। এই বিশাল বড় এই কামানটি। এটা একটা ছোট কামান। It's a small one, a small cannon. So possibly for the smaller vehicles. মুখটা কিরকম দেখতে। আর তারপরে এটা মাঝারি, is the medium level cannon. That is also very big, যথেষ্ট বড় এই কামানটি। So possibly these cannons were the reason for being the fort remain invincible. আশা করি এই কামানগুলোর জন্যই এই ফোর্টকে জয় করা যায়নি।